तो इसमें बेटिंग भी होती है, इसमें ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, इसमें शो ऑफ कल्चर बहुत ज़्यादा है। गलियों और मोहल्लों में पहुंच गई है ये डॉग फाइट। शर्तें लगाई जाती हैं, डॉग्स के जीतने पे डॉग को चैंपियन घोषित किया जाता है, इस पर लाखों का इनाम लगता है। They asked me to keep quiet. Obviously, I have my own family, I have my personal life. I don't have a backing. तो जाऊँ कहाँ? In July 2025 in Mumbai, an 11-year-old boy Hamza was attacked inside an auto rickshaw when a man deliberately unleashed his pit bull and then laughed as the dog bit him. In May 2025, Ahmedabad witnessed a tragic incident when a Rottweiler mauled a 4-month-old baby to death as its owner, busy on the phone, failed to control it. Now, do you remember this man? Meet Amit, a gym trainer from Lucknow who welcomed a pit bull into his family and named him Brownie in 2019. 3 years later, Brownie mauled his 82-year-old mother to death. मैं नाम का ओनर था। खाना हो गया, नहलाना हो गया, जो भी उसके नीडफुल थिंग्स होती थी डेली रूटीन, वो मेरी मदर करती थी। हमारे घर में जैसे बहुत सारे एलिगेशन लगे कि ये कुत्ता जो है बांध के रखा जाता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कुत्ते हमारे खुले रहते थे। घर में इतना बड़ा घर है, फिजिकल एक्टिविटी में मैं खुद उनके साथ खेलता था। घर के एक फैमिली मेम्बर की तरह पाले गए थे, कुत्तों की तरह नहीं। ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखा गया था। खिलाना भी खाना होता था, तो अगर मम्मी एक बाइट अपना ले रही है तो लेफ्ट हैंड साइड से जो डॉग फूड होता है वो उनको दूसरे हाथ से वो खिलाती थी। In 2024, a 1.5-year-old girl was hospitalized for 17 days with her leg broken in 3 places after a pit bull attack in Delhi's Buradi area. मैं सुबह सुबह गोद में लेके घूम रहा था सर बाहर, और बाहर घूमा, गोद में से ऐसे झपटा मारा और ऐसे पकड़ा। उसके बाद भी किसी तरह मैंने बच्चे को नहीं छोड़ा किसी भी हाल में, और पूरे फैमिली हम लोग लगे, तब जाके इसको किसी भी तरह हम लोग छुड़ा पाए हैं। जो डॉग लवर हैं, पशु प्रेमी हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक जानवर को उकसाएंगे नहीं तब तक वो काटेगा नहीं। क्या हो, ऐसा हुआ था? 1.5 साल का बच्ची कुछ बोल नहीं सकते, तो क्या उसका आएगा उसको सर। आगे और पीछे मिला करके कम से कम 8-10 टाँके आए। काफ़ी दिन हम लोग हॉस्पिटल का दौड़े, अभी भी बच्चे के पैर रमेज है। पुलिस में कुछ नहीं किया। इनको सबसे पहले हटाया जाए। नहीं पालना चाहिए, पालतू कुत्ता भी पालना नहीं चाहिए। कॉलोनी में के इंडिया में नहीं होना चाहिए फुटबॉल जैसे कुत्ते। After Amit's case, organizations like PETA India renewed their calls to ban aggressive foreign breeds like pit bulls, urging amendments to the 2017 dog breeding and marketing rules to prohibit their sale and breeding. And in March 2024, the union government directed states and union territories to ban the sale, breeding and import of 23 dog breeds classified as dangerous. But the directive was subsequently suspended and legally challenged. The ban was put on import, sale, breeding and selling of pit bull terriers and breeds similar to them. That implementation has been sent to be deferred after the High Court judgment of 2024. Now, if a judgment has already come on illegal breeding and selling of pit bulls in India, then why are we still able to pick up the call and buy a pit bull puppy sitting at home, getting home delivery? There is no execution. We create a ban, but we don't follow it. We say, let's stop breeding of pit bulls. Pit bulls are still being bred. I can buy you a pit bull puppy any time of the day just by offering money and just by giving a call. भैया वो मेरे बेटे की आपसे बात हुई होगी, पिटबुल की बात हुई थी। डाले पिटबुल, डालने आपको डालने हैं, पिटबुल फॉर डालने आपको। अच्छा डाले हैं। अब वैसे मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, कितनी मतलब बड़ा नहीं हो कि कहीं घर में पले नहीं। 40 देंगे, छोटा बच्चा देंगे, बड़ा देंगे नहीं, आपको छोटा ही देंगे। छोटा, अच्छा 40 दिन का, ठीक है ठीक है। फाइटिंग वाली है या नहीं है, हमारा फाइटर डॉग है। ये तो प्राउडली दे आर सेइंग ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड सेलिंग देयर पपीज। I have one pit bull and she is the friendliest dog. She will never even bark. It's not about the breed. It's about how we are treating that dog. ये भी मैटर करता है कि आप जो डॉग पाल रहे हैं उसे रख कैसे रहे हैं, उसे ट्रेन कैसे कर रहे हैं. That they're not always wild. They should be well under control. The dogs that we think, are attacking, it's completely because the owner has no clue,
how to raise and train their dog. For example, and lot of very dangerous, very aggressive dogs come to us of all breeds, mostly Indies, Labradors, Beagles, and they have a lot of biting history. So we rehabilitate them and we work on their aggression. But most importantly, we want to teach the pet parents and the owners of the dog to make better decisions and to be more educated about dog keeping. That's where all of the challenges and accidents are happening. It's the people's responsibility more than, let's say, blaming the animal. We cannot blame that breed specifically. इस breed का problem क्या है? इनका jaw lock. अगर इन्होंने bite कर लिया, they have a aggressive bite. But हम उन्हें aggressive कैसे बना रहे हैं? एग्रेसिव डॉग्स की आप ब्रीडिंग करा रहे हैं तो ऑब्वियसली जीन्स भी मैटर करेगी उसमें, एंड वो तो प्राउडली बोलते हैं कि भैया फाइटर डॉग का बच्चा है बेच रहे हैं, एंड वो कॉस्ट भी ज़्यादा होता है. बट जब वो फाइटर डॉग का बच्चा घर पे आता है, क्या गारंटी है कि वो अटैक नहीं करेगा? Pit bulls are high energy dogs, but in India they are often bred illegally for hunting and dog fighting. Dogs bred for fighting pass down aggression through their bloodlines, leading to unpredictable behavior and tragic incidents. अपने पिटबुल को ये लोग बहुत ट्रेन करते हैं एग्रेसिव बनाने के लिए. इनको लीश चेन के साथ जकड़ के रखते हैं. इनके फाइटिंग वाले जो डॉग्स होते हैं उन्हीं की ब्रीडिंग कराते हैं ताकि जो उनके पपीज हो वो भी एग्रेसिव हो. ठीक है, उन्हें केज करके रखेंगे, उनके क्रॉप कर देंगे कान छोटे होते ही, एंड उनकी टेल काट देंगे, और बिना एनेस्थीसिया के भी काटते हैं ये लोग. और जो डॉग हार जाता है तो आपको क्या लगता है उसका ट्रीटमेंट कराएंगे? वो अबेंडन कर देंगे या शूट कर देंगे? Across states like Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Jammu and Kashmir, underground dog fighting rings are rampant. These brutal contests are usually held in secluded fields or hidden compounds where crowds gather to gamble on which dog will outlast the other. They thrive because dog fights are seen as easy money with heavy betting, local bragging rights and culture that glorifies violent masculinity. और जब ये एक्चुअल फाइट चलती है दो ग्रुप्स के बीच में, प्रॉपर बेटिंग और ड्रग्स खुला चलता है वहाँ. गैंगस्टर्स आर इन्वॉल्व, बट ये जो अपने यूथ है उनको इन्वॉल्व करते हैं. मेरे पास एक केस आया था, दो पेरेंट्स आए थे. सो दे केम टू मी कि बेटा हमारा थोड़ा नशों में चला गया और घर पे कुत्ता ले आया है, प्लीज कम और उसको समझाओ कि ये कुत्ता क्यों लेके आया है. सो जब लड़के से बात की, प्यार से बात की, काफ़ी रेगुलर काउंसलिंग की, डॉग भी देख रहे थे काफ़ी एग्रेसिव था वो डॉग, एंड वी गॉट टू नो कि वो फाइट कराने लेके जाता है. वो डॉग इतना एग्रेसिव था कि हम लोग भी हैंडल नहीं कर पा रहे उसे. Even Punjab music has in the past glorified this culture and promoted illegal dog fighting. In his 2017 song Pitbull, Diljit Dosanjh sang "Rakhe fight to vi Pitbull charni," meaning he has kept 4 pitbulls for fighting. Similarly, Kamal Garewal's 2016 track Sarkari Band says "Pitbulla da chalaya yara ne hai दौड़नी," meaning friends have started the trend of pitbull fights. ग्लैमरस तरीके से वीडियोस में ये पंजाबी सिंगर्स दिखाते हैं, एंड इट्स एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग आवर यूथ. तो उनको लगता है ये बहुत शो ऑफ की चीज़ है, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. बल्कि आप मानेंगे पुलिस वालों को भी नहीं पता लीगल है इलीगल है. मैं अगर पुलिस वालों के पास भी जाऊंगी ये चल रहा है तो क्या हो गया? इट्स सो कॉमन फॉर देम कि तो क्या हो गया. Animal rights activists have repeatedly complained about the flourishing underground dog fighting industries, but little action has been taken. सारा पंजाब, सारा दिल्ली, सारा हरियाणा कुत्ता लड़ाਉਂਦਾ है. गवर्नमेंट ने कहा छोटा भाई या जे मैं गवर्नमेंट को हाथ लगा दिया ना तुझे कपड़े से फाड़ देंगे हम. अच्छा अच्छा, नाम बता के बताओ. जिसने बोलना है पहले अपना नाम बताओ फिर बोलो. अभी रिसेंटली हमने किसी को एक्सपोज किया था जो कि सनम गुज्जर के नाम से, जो कि पंचकुला कोर्ट में काम कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अनपढ़ समाज या अनपढ़ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की उसको कर रहे हैं. इसमें फैलता जा रहा है. इसमें एक वजह ये भी है, इस पर एक्शन ना होने के कई पुलिस वाले भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं. ना तो कोई फैसिलिटी है ऐसे डॉग्स के लिए, ना ही कोई एनजीओ आगे आना चाहती है, ना कोई शेल्टर आगे आना चाहता है जो ऐसी डॉग्स की एक बड़ी फैसिलिटी बना पाए जहाँ पे इनको मेंटल स्टिमुलेशन और फिजिकल स्टिमुलेशन दी जा पाए और इन डॉग्स को ठीक से रखा जा पाए. Experts warn that unchecked breeding and buying from illegal breeders are the real problems. इसकी ब्रीडिंग और इंपोर्ट को बैन किया जाए और जिनके पास है उन डॉग्स को स्टेरिलाइज किया जाए, न्यूटर किया जाए ताकि इनकी पॉपुलेशन आगे ना बढ़े. और जो लोग ये डॉग्स पाल रहे हैं
वो गवर्नमेंट को अंडरटेकिंग दे, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने ऐसे डॉग्स दिए हैं कि कोई भी अगर इनसे नुकसान होगा तो इसके लिए बहुत जिम्मेदार होंगे और पूरी एहतियात बरतेंगे इन कुत्तों को रखते हैं. The real solution lies in smarter policy, responsible parenting, and greater awareness. Because with proper breeding, training, and care, even pit bulls and Rottweilers can be loyal, loving companions.